ویو 360 میں خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن، ہزاروں شکایات لیکن مدد کے لیے دفتر صرف ایک۔ میں اپنے خاوند کے کمپلینٹ کے لیے ادھر آئی ہوں۔ پاکستان میں 3% افراد کو کورونا ویکسین لگ چکی، وفاقی دارالحکومت میں صورتحال کا جائزہ۔ سیکنڈ ڈوز کے لیے ایلیجبل ہو چکے ہیں وہ 4.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ اور ملاقات امریکہ کے 5ویں بڑے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پہلے پاکستانی اسسٹنٹ پولیس چیف سے۔ This is a big trust that the community gives to the officers کہ ہم جو بھی ڈیسیجن میک کریں گے وہ امپارشل ہوں گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے ہر صوبے میں کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن یا کمیشن برائے وقار نسواں کام کر رہے ہیں۔ ان کے تحت کام کرنے والی ہیلپ لائنز پر خواتین مختلف مسائل سے متعلق اپنی شکایات درج کرا سکتی ہیں اور مدد کے لیے رابطہ کر سکتی ہیں۔ ان ہیلپ لائنز کے کام کا دائرہ خاصا وسیع ہے، لیکن یہ وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو پورے صوبے کے لیے ہیلپ لائن کا صرف ایک دفتر ہے۔ لاہور میں ہیلپ لائن کو کس نوعیت کی شکایات زیادہ ملتی ہیں اور محدود وسائل میں خواتین کی مدد کس حد تک ممکن ہو پا رہی ہے، بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔ صوبہ پنجاب میں خواتین اپنے مسائل کے لیے براہ راست مدد حاصل کر سکیں، اس کے لیے پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ہیلپ لائن 1043 سال 2014 سے کام کر رہی ہے۔ کس کو کمپلین کیا پی ایم ڈی سی کے یہ ہاسپٹل کے؟ ہیلپ لائن بنائی اس لیے گئی تھی کہ ایک ڈیٹا بیس بھی مینٹین ہو اور اس میں خواتین کو جو کسی بھی ایشو میں الجھی ہوئی ہیں وہ کال کر کے اس کے بارے میں آگاہی بھی لیں، انفارمیشن بھی لیں، اور اگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ دونوں ڈپارٹمنٹ، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، پنجاب کمیشن، ان کے بیک اینڈ پہ رہ کر متعلقہ اتھارٹی سے جس کا اختیار ہے اسے پش اپ کر کے ان کے مسائل حل کروائیں۔ خواتین کسی بھی نوعیت کے مسئلے میں مدد کے لیے فون، خط یا ای میل کے ذریعے یا خود آ کر اپنی شکایت درج کرا سکتی ہیں۔ ضرورت کے مطابق ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اور لیگل گائیڈنس چاہیے ہو تو ہماری ہیلپ لائن۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو میری اسٹیپ مدر ہیں وہ یعنی جائیداد میں ہمیں حصہ نہیں دے رہے، وہ اس وجہ سے میں یہ دفتر جو ہے اس کا مجھے پتہ چلا تھا، یہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اپنے خاوند کے کمپلینٹ کے لیے ادھر آئی ہوں۔ بھی آئے دن مجھے، میرے 4 بچے ہیں، 16 سال شادی کو ہو گئے، 16 سال تقریباً ایسے ہی میرے گزرے ہیں۔ آئے دن مار پیٹ کے گھر سے نکال دینا، بچوں کو مارنا، نہ کسی قسم کے کوئی اخراجات پورے کرنا۔ ادارے کے مطابق بیشتر درخواستوں پر کام 30 دن میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اگر فری کین صلح صفائی کرنا چاہیں تو PCSW ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، ورنہ پولیس اور عدالت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کی مدد سے مسئلہ حل کرایا جاتا ہے۔ PCSW کے مطابق صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع سے خواتین کو جائیداد سے محروم کرنے، کم عمری میں شادیاں اور جرگے کے فیصلوں سے متعلق شکایات سامنے آتی ہیں، جبکہ وسطی اور بھلائی اضلاع سے گھریلو تشدد، خاندانی جھگڑوں اور سائبر کرائم سے متعلق شکایات سامنے آتی ہیں۔ ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس جنوری سے مئی تک 8533 کیس رپورٹ ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ تعلیم اور روزگار سے متعلق تھے اور اس کے بعد گھریلو تشدد، جائیداد کے مسائل اور ہراسانی سے متعلق تھے۔ ہمیں فیس بک سے ریلیٹڈ شکایات آتی ہیں، انسٹاگرام سے ریلیٹڈ، واٹس ایپ سے ریلیٹڈ اور دیگر جتنے بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کسی سے بھی ریلیٹڈ شکایت آ سکتی ہے۔ پکچر دیکھ کے تو وہاں پہ دوستی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی لوگ جو ہیں ان کو فیک IDs بنا کے اس کے اوپر پکچرز اپلوڈ کر کے تو ان کو ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارچ سے یہ شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، تو اچانک ہی جب مارچ اپریل مئی کا جو ہمارا کوارٹر ہے اس میں جو ہماری کالس بہت زیادہ، جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ٹرینڈ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ فیملیز نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ گزارا۔ جیسے پھر لاک ڈاؤن اوپن ہوا تو یہ ریشو پھر دوبارہ نارمل ہوتی گئی۔ PCSW کی ہیلپ لائن کا صرف ایک مرکزی دفتر لاہور میں قائم ہے، صوبہ بھر میں اس کی کوئی ذیلی شاخ نہیں ہے۔ یوں لاہور سے دور رہنے والی خواتین کے لیے ادارے تک رسائی کچھ مشکل ہو جاتی ہے اور عملے پر کام کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ادارے کے حکام ہیلپ لائن کے مزید مراکز کھولنے کے حامی ہیں، مگر وسائل کی کمی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان میں ایک بار پھر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کو معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تیسری بار ہے جب ٹک ٹاک کا پاکستان میں آپریشن معطل کیا گیا ہے۔ عدالت میں درخواست گزار کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ ٹک ٹاک اپلیکیشن پر ایسی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جن سے نوجوان نسل پر
गहरे मनफी असरात मुरतब होते हैं। टिक टॉक दुनिया की मकबूल तरीन ऐप्स में से एक है। चीन में बनाई गई इस ऐप पर कोई भी अपनी पसंद से मवाद बनाकर डाल सकता है, लेकिन पाकिस्तान में टिक टॉक बार बार बैन क्यों हो रही है? इस पर बात करने के लिए चलते हैं कराची, जहां से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मोहम्मद साकिब हमारे साथ हैं। साकिब, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऐप पर पाबंदी लगाई थी। बार बार क्यों ये मामला सर उठाता है? अब सिंध हाई कोर्ट ने ये कर दिया है। जी असद, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जानना ज़रूरी है कि टिक टॉक पाकिस्तान की तीसरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ऐप है और अब तक 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। जब भी इस पर जो है पाबंदी की बात आती है तो उसमें जो प्री टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है वो यही है कि काबिल एतराज़ मवाद इस पर शामिल किया जाता है, अपलोड किया जाता है, गैर इखलाकी होता है, फहश मवाद होता है, जिसकी वजह से जो है जब भी कोर्ट में कोई दरख्वास्त गुजार जाता है, एप्लीकेंट जाता है, तो जो है कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिल जाता है और उस पर जो है फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। तो ये तीसरी दफ़ा है कि जब जो है कोर्ट की जानिब से ये पाबंदी आयद की गई है और तीनों दफ़ा यही प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है कि इस अपलोड के इस ऐप के ज़रिए जो मवाद अपलोड किया जाता है उससे नौजवानों में मनफी तासुर उभरता है और उनको जो है उनकी जो एक जो तरीक़ाकार है उसमें जो है गैर इखलाकी मवाद होता है, फहश मवाद होता है, काबिल एतराज़ मवाद होता है। जी प्लीज़। जी, तो इस पर अदालत ने जो है नोटिस जारी कर दी है डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस हवाले से इनसे जवाब एक दफ़ा फिर तलब कर लिया गया है। राइट, तो एक तरफ तो टिक टॉक ने साकिब पाकिस्तान के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, कंपनी अपने मवाद से मुतालिक आगाही मुहिम भी चला रही है, तो टिक टॉक पर जो मवाद अपलोड होता है उसे रेगुलेट करने में मसाइल हैं क्या? असल में ये जो आप बात करें वो ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल 2021 के तहत जो है मुकर्रर किए जाने हैं। न सिर्फ टिक टॉक बल्कि जो दीगर जो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनको भी अपने अपने जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मुकर्रर करने हैं, लेकिन अभी तक ये रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं और ये रूल्स फाइनलाइज होने के बाद चूँकि ये जो सोशल मीडिया के जो इससे मुतालिक जो रूल्स बनाए गए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए थे और ये मामला अभी अदालत में है। ये रूल्स फाइनलाइज किए जाने के बाद स्टेक होल्डर से मुशावरत की जानी है और उसके बाद ये रूल्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुट अप होंगे और फिर ही इस हवाले से कोई बात तय हो पाएगी कि जो ग्रीवियंस ऑफिसर है उसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी, उसके क्या फ़राइज़ क्या होंगे और वो किस तरह काम करेगा। तो उस वक्त तक ये जो ऑफिस है ये फ़िलहाल जो है वो रेलेवेंट नहीं है और इसका कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से जो मवाद है उसको रेगुलेट किया जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान जो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी कहा था कि जो ब्लाइंड ब्लैंकेट है किसी भी ऐप पर वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि उसमें जो मवाद है उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है क्या वो मवाद पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और अखलाकियात हैं उन पर पूरा उतरता है या नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। जिस तरह से सिंध हाई कोर्ट ने तीसरी बार पाकिस्तान में पाबंदी लगाई है उस हवाले से हमें साकिब पाकिस्तान से अपडेट कर रहे थे कराची से। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में काफ़ी कमी आई है और NCOC के मुताबिक इस हफ्ते के आगाज़ में मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह सिर्फ 2% के लगभग रह गई है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल कहाँ तक पहुँचा है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मार्च के अवाइल में शुरू की गई थी। शहर की कुल आबादी 20 लाख के लगभग है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इसमें से 15 लाख अफराद 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाने के अहल हैं। इस्लामाबाद की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन है, उसमें से तकरीबन जो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं वो 4.5 लाख के करीब हैं, विच मेक्स अबाउट 25-30%। सो बीच में एक गैप भी आया है जिसमें वैक्सीनेशन, वक्ती गैप था जिसमें वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, तो ये फिगर ज़ाहिर है फॉल बैक किया है इसने, लेकिन अभी ये दोबारा पिकअप हो जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद में रोज़ाना 15,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है और महकमा सेहत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें दोनों डोजेज लग चुकी हैं इनकी तादाद 1.25 लाख से कुछ ऊपर है।
डॉक्टर फैसल सुल्तान एक ट्वीट में ये कह चुके हैं कि जून के महीने में वैक्सीन की 60 लाख से ज़्यादा डोजेस पाकिस्तान पहुंच रही हैं, लेकिन वैक्सीन की फराहमी में वक्फों के बायस दारुल हुकूमत में हर्ड इम्यूनिटी यानी 70% अफराद की मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करने का हदफ इस साल हासिल होता नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि अगर इस साल के आखिर में तो नहीं, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक अगर हम 60 to 70% कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वक्त गुजरने के साथ वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाहट में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है, जिससे वैक्सीन की तलब बढ़ रही है। हुकूमत के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कबूल वैक्सीन का हसूल है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरफ राग़िब करना भी उसके अहम अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका के अलावा ज़्यादातर चीन में तैयार की गई वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि फाइज़र की वैक्सीन महदूद मिकदार में आई है। दुनिया के कई मुल्कों में चीनी वैक्सीन के बारे में पाए जाने वाले शुबहात के सबब पाकिस्तानी तशवीश का शिकार हैं। फाइज़र लगवानी जो आ ही नहीं रही, इधर कहीं भी नहीं मिली, लाहौर से भी नहीं, इस्लामाबाद भी, तकरीबन टोटल हॉस्पिटल हमने चेक किए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हम आउट कंट्री जाना चाहते हैं, हमारा मुस्तकबिल है उधर, तो बराए मेहरबानी हमें ये वैक्सीन दी जाए। 6-7 दिन से मैं मुख्तलिफ सेंटर पे जा रहा हूँ, कश्मीर से लेकर यहाँ तक। तो कल मुझे एक जगह एस्ट्राजेनेका मिली थी, लेकिन वो मेरा मसला है शुगर का, तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं लग सकती, आप फाइज़र क्यों ढूंढें। अब यहाँ पे आपके सामने सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान को जून के शुरू में फाइज़र की 1,05,000 डोजेस मौसूल हुई, जिनमें से 2 टीकों पर मबनी 51,000 वैक्सीन को मुख्तलिफ सूबों में बांटा गया है। इस तरह सूबे पंजाब के हिस्से में 26,000, सिंध को 12,000, खैबर पख्तूनख्वा को 8,000, जबकि बलूचिस्तान को 2,000 खुराकें मिली हैं। इस्लामाबाद को फाइज़र की 1,000 डोजेस दी गई हैं, जबकि 2,000 गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भेजी गई हैं। ये तरजीही बुनियादों पर सिर्फ ऐसे अफराद को लगाई जा रही हैं जिन्हें किसी जिस्मानी आर्ज़े की वजह से सिर्फ यही वैक्सीन देना महफूज समझा जा रहा है। फाइज़र की मज़ीद सप्लाई कब पाकिस्तान को मिलेगी, ये कोई वसूख से नहीं बता सकता। KTR अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन 23% से कुछ ज़ायद लोगों को वैक्सीन का एक टीका लग चुका, लेकिन भारत में सामने आने वाले कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सूरत हाल को खासा पेचीदा कर रहा है। वायरस की ये किस्म अब तक तकरीबन 85 ममालिक में सामने आ चुकी। माहिरीन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है क्योंकि इसमें हमारे खुलियों को जकड़ने की सलाहियत ज़्यादा है। बरतानिया में कोरोना वायरस के नए केसेस से 90% कमी जो है वो अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें मेन फोकस सबसे ज़्यादा हमें डेल्टा वेरिएंट का ही मिलता है। अमेरिका में हुकाम के मुताबिक कोविड के ख़ात्मे की राह में ये किस्म रुकावट बन सकती है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए कुछ मुल्कों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, और जिस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इस हवाले से लॉकडाउन लगाया गया। सिडनी में 14 रोज़ का लॉकडाउन हफ्ते के रोज़ शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया से क्वारंटीन के बगैर सफ़र करने को 3 दिन के लिए मुअत्तल कर रखा है। बांग्लादेश में भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है और शहरियों को सिर्फ तिबी ज़रूरतों की बुनियाद पर घरों से बाहर निकलने की इजाज़त है। रूस में भी कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे का सबब डेल्टा वेरिएंट को ही समझा जा रहा है, जबकि अफ्रीका में 1 हफ्ते में केसेस की तादाद में 25% इजाफा देखा गया है। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते डेल्टा वेरिएंट के केसेस में तेज़ी से इजाफे की तस्दीक की है, जबकि भारत में अब डेल्टा प्लस भी सामने आ चुका। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया में 4थे नंबर पर है और इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की जद में भी है। वहाँ कोविड-19 के जो केसेस हैं 20 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और इनमें इजाफे का खदशा भी है। आइए देखते हैं कि दुनिया का ये इंतहाई गुंजान आबाद मुल्क आलमी वबा से निमटने के लिए क्या कर पा रहा है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत में अस्पतालों के बिस्तर तेजी से भर रहे हैं। जकार्ता मुल्क के उन 3 शहरों में से एक है जहां ईद उल फितर के बाद से कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी एक मुमकिना वजह सबसे पहले भारत में सामने आने वाला डेल्टा वेरिएंट है। कुछ इलाकों जैसे कुडस और जकार्ता और बंकालान में भी इस बात की तस्दीक हुई है कि इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट या भारत में सामने आने वाली किस्म के ही हैं। इंडोनेशिया में तस्दीक शुदा केसों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर चुकी है। इसका फैलाव कम करने में मदद के लिए सदर जोको विडोडो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाना चाहते हैं ताकि जुलाई तक हर रोज कम से कम 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सके, लेकिन प्रोग्राम सुस्त रवैये का शिकार है। इंडोनेशिया जुलाई तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा नहीं कर पाएगा।
जून के वस्त तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख अफराद को ही मुकम्मल वैक्सीनेट किया गया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों में 20% से भी कम अफराद को वैक्सीन दी गई है। हमें कुछ रुकावटें दरपेश हैं। पहली तो ये कि तमाम मुअम्मर अफराद वैक्सीन लगवाने पर तैयार नहीं हैं और उनको वैक्सीन लगाने पर आमादा करना आसान नहीं है। हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट्स के बारे में परेशान हों। जून में हुकूमत ने 18 और उससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन का अहल करार दिया था और अब एक नया हदफ जकार्ता में 75 लाख अफराद को अगस्त तक वैक्सीन देना है, जो अहदेदारों के मुताबिक दारुल हुकूमत में हर्ड इम्यूनिटी के हसूल के लिए काफी है। इंडोनेशिया में अब तक अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है, लेकिन यहाँ पड़ोसी मुल्क मलेशिया की तरह के सख्त लॉकडाउन का मंसूबा नहीं है। PPKM मिक्रो छोटे पैमाने पर अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां कोविड-19 के मसले को जड़ से खत्म करने के लिए की गई हैं। ये कम्युनिटी की सतह पर हैं और लॉकडाउन से बेहतर रही हैं। लेकिन क्या ये इक़दामात काफी होंगे? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में हाल ही में होने वाले 2 तहकीकी जायज़ों में कहा गया है कि मुतासरा अफराद की तादाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा हो सकती है। इस तहकीक में शामिल वबाई अमराज के एक माहिर का कहना है कि इसकी वजह टेस्टिंग में कमी है। अगर टेस्ट कम होंगे तो मुतासरीन भी कम तादाद में सामने आएंगे, लेकिन ये इस बात की अलामत भी है कि हमारी टेस्टिंग फैलाव का पता लगाने के लिए नाकाफी है। इस दौरान माहिरीन सेहत लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं और हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो टेस्ट करवाने और इन्फेक्शन के शिकार अफराद का पता चलाने वाले प्रोग्राम्स में इजाफा करे और शहरियों की नक्लो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद करने पर गौर करे। गीता पर मुतासरी के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। कराची के साहिल से कुछ दूर समंदर में बाज आबाद जज़ायर भी हैं, लेकिन वहाँ सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। व्यू 360 में जल्द हम आपको दिखाएंगे एक डॉक्टर जो कि रोज़ाना कश्ती के ज़रिए बाबा आइलैंड नामी जजीरे पर जाती हैं ताकि मरीज़ों का इलाज कर सकें। इस वक्त देखते हैं इस रिपोर्ट की एक मुख्तसर झलक। कुछ उनको रिजर्वेशन थी कि कश्ती से गिर गई, कश्ती डूब गई, फिर उन्हें समझाया कि नहीं, ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप होता है। डॉक्टर के आने से ना जनरली फीमेल पॉपुलेशन जो है ना वो बड़ी है इधर दिखाने के लिए। अमरीकी खलाई इदारा नासा ज़मीन से लाखों मील दूर खलाबाजों के कपड़ों की सफाई के लिए अब टाइड डिटर्जेंट के साथ तजुर्बा करने जा रहा है। खलाबाज अब तक मैले कपड़ों के साथ क्या करते आए हैं और खला में कपड़े धोना क्यों एक मसला रहा है, ये आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पर शाया इस मज़मून में। इसके अलावा दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन का पुलिस डिपार्टमेंट अमेरिका में पुलिस का 5वां बड़ा महकमा है। यहाँ मुख्तलिफ रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5,500 पुलिस एहलकार 20 लाख शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। यासिर बशीर आज अमेरिका के इस पुलिस डिपार्टमेंट के पहले मुसलमान और पाकिस्तानी असिस्टेंट पुलिस चीफ हैं। उनसे मुलाकात करवा रही हैं मोना काजिम शाह।
پاکستان میں پیدا ہونے والے یاسر بشیر 8 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ 1985 میں پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے۔ ان کے مطابق انہوں نے اس شعبے کا نہیں بلکہ اس شعبے نے ان کا انتخاب کیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پولیس آفیسر بنوں گا۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ میں نے اصل میں بزنس مین بننا چاہتا تھا، لیکن دل میں مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی جب میں لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کیا امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی اور مسلمان کو اس مقام تک پہنچنے میں دشواریاں پیش آئیں؟ یاسر بشیر کے مطابق ان کا اپنے مقصد پر دھیان ان کی کامیابی میں سب سے زیادہ مددگار رہا۔ وہ جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو وائسز، جیسے لوگ یوز کرتے ہیں، تم پاکستان سے ہو، تمہارا ریلیجن یہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ بندے کو سوچنا نہیں چاہیے۔ جو بچے جو لوگ ہوتے ہیں نا سکسیزفل، جو چیمپئن ہوتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں سوچتے۔ ہزاروں آورس آف اسٹڈنگ، personal sacrifice, that's what it takes to make it here. It does not happen overnight. گزشتہ دنوں امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں تشدد کے کئی واقعات سامنے آئے اور ان پر شدید رد عمل بھی۔ ایسا لگا جیسے امریکی عوام کا پولیس پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہو۔ ایسے میں ایک پاکستانی اور مسلمان پولیس آفیسر ہوتے ہوئے یاسر بشیر کے احساسات کیا تھے؟ یہ جو ہماری جو پوزیشن، یہ بیج، یہ ہوتا ہے ٹرسٹ فرام دا پبلک۔ This is a big trust that the community gives to the officers کہ ہم جو بھی ڈیسیجن میک کریں گے وہ امپارشل ہوگی۔ ہم نے آپ کا رنگ نہیں دیکھنا، آپ کا ریلیجن نہیں دیکھنا۔ ایک جو آفیسر جو غلط کام کرتا ہے یا غلط ڈیسیجن میک کرتا ہے، یہ ہمارا پورا پروفیشن پہ وہ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ۔ جارج فلوئڈ یوسف میں نہیں ہوا، لیکن وہ انسیڈنٹ کی وجہ سے پوری امریکہ میں، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے۔ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے، ہمارا چیف سب سے آگے ان کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ وہ کیوں؟ دکھانے کے لیے کہ تمہارا رائٹ ہے، تم پروٹیسٹ کر سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاسر کے ساتھی پولیس آفیسر کاپولس ان کی اس رائے کی تائید کرتے ہیں کہ ہیوسٹن جیسے متنوع امریکی شہر میں ایک پولیس آفیسر کی ذمہ داری کی نوعیت منفرد ہوتی ہے۔ Whenever you are in a city like this with people from all over the world. ہیوسٹن جیسے شہر میں جہاں ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ بستے ہیں، جن کے مذہبی، سیاسی اور سماجی نظریے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، تو ایسے شہر میں ایک پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ I see that drive in him. ان کے اندر کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ میرے خیال سے وہ بہت آگے جائیں گے۔ میں ان کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ 2017 کے پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق امریکی آبادی کا 1.1% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر امریکہ کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیوسٹن شہر کے علاوہ کئی امریکی شہروں کے پولیس کے محکموں میں مسلمان پولیس آفیسرز کام کر رہے ہیں، جن میں نیو یارک، نیو جرسی اور واشنگٹن ڈی سی قابل ذکر ہیں۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اس سے متعلق رپورٹس اور بھی آنے والے پروگرامز میں آتی رہیں گی اور ہم مزید کوشش کریں گے کہ جتنے پروفائلز یہاں سے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں یا پاکستانی امریکنز ہیں، وہ اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔